Hello everybody, I am Namita Jain. Welcome to the session of Computer Networks. So in this session we'll be discussing some of the numerical problems of the computer networks. You can also join me over here on Telegram. You can email me, and this is my YouTube channel. So the question is, if a file consists of 50,000 characters, takes 40 seconds to send, then what is the data rate? हमें यहाँ पे निकालनी है data rate. और data rate किस में निकालनी है? देखिए जो आंसर लिख रखा है वो दे रखा है kbps में. ओके तो और यहाँ पे जो characters हैं and then this is 40 seconds. So we have to convert this into the kilobytes. So let's start doing the question. So normally the system takes 1 byte for 1 character. Okay, so normally system क्या लेगा? It takes 1 byte for 1 character. So if I write like this, system takes 1 byte for 1 character. और question में क्या दे रखा है? Characters, 50,000 characters. तो अब हम निकाल सकते हैं total byte of data. वो कितना हो जाएगा? It is 50,000 into 1 byte, which is equal to 50,000 bytes. Okay. Now it takes 40 seconds to send 50,000 bytes as it is been given. कि it takes 40 seconds to send 50,000 bytes. Then we have to find like जो bandwidth होगी वो क्या होगी. So bandwidth is equal to how many bytes in 1 second. How many bytes in 1 second ये हमें निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? 50,000 divided by 40, it was been given. This is equal to 1250 bytes per second. पर जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अंदर हर आंसर है kb के अंदर. So let's convert it over here. तो अगर मैं इसको बिट्स में लूंगी तो it is like this, 1250 into 8 कर सकते हैं ऐसा. तो 8 पर सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू 10,000. तो ये कितना हो जाएगा? 10 kbps. आप इसको लिख सकते हैं. सो द आंसर इज 10 kbps. ओके, so this is the correct answer, which is 10 kbps. Let's go to the next question. So this is the next question in which it is being asked like the bandwidth of the line is 1 mbps with round trip time. तो यहाँ पे हमें क्या given है? Round trip time हमें यहाँ पे given है, which is given as 45 milliseconds. If the size of each packet is 1 kilobyte, what is the efficiency? तो यहाँ हमें निकालनी है efficiency किसमें? Stop and wait प्रोटोकॉल के अंदर. तो जब यहाँ पे हमें दे रखा है राउंड ट्रिप टाइम, तो हमें पता करना पड़ेगा अबाउट द प्रोपोगेशन डिले एंड अबाउट द ट्रांसमिशन डिले. सो लेट्स सी हाउ टू डू सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. So for finding the efficiency, let's first calculate the propagation delay. हमें क्या निकालनी है? Efficiency. तो efficiency निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे propagation delay, right? तो propagation delay निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है it is 2 into p is equal to round trip time. और round trip time यहाँ पे कितना दे रखा है? 45 milliseconds given है. तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना कि P कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 22.5 milliseconds. Okay, now we have to find the
ट्रांसमिशन डिले। तो लेट्स डिनोट ट्रांसमिशन डिले बाय टी। तो टी कैसे निकालते हैं? टी होता है टी इज इक्वल टू एल अपॉन बी, वेयर एल इज व्हाट? एल इज द साइज ऑफ पैकेट and what is B? B is the bandwidth. ओके, तो L कितना गिवन है? L है हमारा 1 kb। 1 kb, तो 1 kb को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1024 मल्टीप्लाइड बाय 8, हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 kb को। ओके, और जो हमारी बैंडविड्थ है वो यहाँ पे गिवन है, इट इज 1.5 इंटू 10 to the power 6। 10 to the power 6 इसलिए लिखा है क्योंकि ये मिली सेकेंड्स में थी। ओके, और मैंने इसे कन्वर्ट किया है। देन t इज इक्वल टू, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो इट इज 8192 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6, it is equal to 5.461 milliseconds। अब हमारे क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि हमें फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज 1/1 + 2a। ओके, और a क्या है? वेयर a इज इक्वल टू P/T। P/T हम जैसे यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, ये है हमारा P, प्रोपोगेशन और ट्रांसमिशन डिले। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 1/1 + 2 और P/T, which can be written here as like this 1/1 + 2। P कितना है? 22.5 और T कितना है? 5.461। अगर इसको आगे और सॉल्व करेंगे 1/1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 को डिवाइड करेंगे जब 5.461 से, इट इज इक्वल टू 4.12। सो वी कैन राइट लाइक दिस 1, इट इज इक्वल टू 0.108। लेट्स कैलकुलेट इट। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.12 से, जो भी आएगा 1 उसको उसमें ऐड करेंगे, सो 1/that इट इज इक्वल टू 10.8%। तो 10.8% क्या निकली है हमारी? दिस इज द एफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? एज पर द एफिशिएंसी हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया है प्रोपोगेशन डिले, फिर ट्रांसमिशन डिले, और फिर हमने फॉर्मूला देखा है ट्रांसमिशन का L/B, then it is equal to this. We have converted it properly, and then for finding out the efficiency, the formula is 1/1 + 2a, और a की वैल्यू क्या होती है? P/T। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी है एंड द आंसर इज 10.8। So this 10.8 is the correct answer. Okay, so let's go to the next question. The question is, consider subnet mask of class B network on the internet is this. Then what is the maximum number of hosts per subnet? तो हमें यहाँ निकालना है कि maximum number of hosts per subnet क्या होंगे। तो अगर हमें ये निकालना है कि to find number of hosts per subnet, we have to check for the number of zeros. Okay, और यहाँ पे क्या गिवन है? 255.255.40.0, 255.255.240.0। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं और मुझे फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इट इज लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, और जीरो को हम वापस कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4 तो ये और 8 ये, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए?
12 हो गए। So now let's use the formula 2 to the power n minus 2. हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 to the power n minus 2. तो 2 to the power, देखिए जीरोस कितने हैं यहाँ पे 12 जीरोस है, 2 to the power 12 minus 2 करेंगे तो इट इज इक्वल टू 2 to the power 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 4096 माइनस कर लेंगे 2, इट इज इक्वल टू 4094. ओके, so one of them is used for the network ID of entire network and the other one is used for the directed broadcast address of the network. तो इसलिए हम यहाँ से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो 2 सब्ट्रैक्ट किया है वो हमने इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। तो एक तो होगा आपका नेटवर्क आईडी के लिए और जो दूसरा है वो है आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए. सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2. सो द करेक्ट आंसर इज 4094. So 4094 is the correct answer for this. Okay. Thanks for watching.